Good evening children, welcome back to the channel English Guru. I hope you all must be taking help from the videos which I have been making for you all, and all the videos must be helping you to understand your chapters thoroughly. And if you have any problem, you can write in the comment box. I can improve my videos also. So today's topic I have taken for class 8 from the book Honeydew. It's a poem, Macavity the Mystery Cat, and its poet is T.S. Eliot. His full name is Thomas Stearns Eliot, and this poem written by T.S. Eliot is a long poem about a villainous and wicked cat. The poem describes how the cat manages to commit all kinds of crimes and always escapes from being caught. मतलब ये पोएम हमें ये बताती है कि कैसे एक बहुत ही विलेन, मतलब जो गुंडा जैसे होता है, और विकेड बहुत ही दुष्ट एक कैट है जिसका नाम है मैकेविटी। और ये पोएम हमें ये बताती है कि कैसे वो सभी तरह के अपराध करने के बाद भी हमेशा सज़ा से बचकर निकल भागता है। यहाँ तक कि जो पुलिस है वो भी उसे पकड़ नहीं पाती है, पर वो क्राइम करके चुपचाप निकल भागता है। He breaks all the laws, yet the police fails to catch him. He also has some alibi. Alibi होता है बच्चों, और statement by somebody that says you were in a different place at the time of crime and so you can't be guilty of the crime. यानी कि एक ऐसी, जैसे आपके पक्ष में कोई स्टेटमेंट दे दे कि क्राइम के वक्त तो वो आपके साथ था और फिर उसकी वजह से आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। इसे कहते हैं alibi, A-L-I-B-I. The poem is light in tone and theme is also not very serious. It is actually a humorous poem, and we will discuss each stanza in detail, line by line, and also learn the meanings of difficult words. So you all can open your books and read along with me. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? Poet is asking two questions from you. Do you have a pet cat? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? Have you ever noticed anything mysterious about it? क्या आपने इसके बारे में कुछ रहस्यमय, कुछ ऐसा नोटिस किया है जो आपको मिस्टीरियस लगा हो, मिस्ट्री हो, जिसमें रहस्य हो? It is not easy to say whether every cat is a mystery, बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर। ये आसान नहीं है कहना कि हर बिल्ली जो है वो एक रहस्य है, लेकिन मैकेविटी के बारे में अगर कहें तो निश्चित तौर पर वो एक मिस्ट्री है, वो एक रहस्य है। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसा क्या है जो उसे पूरी तरह से एक रहस्यमयी बिल्ली बनाता है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। सो लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट दैट व्हाट मेक्स Macavity a perfect mystery cat. This is what we will find after reading the poem Macavity a Mystery Cat. Macavity is a mystery cat. He is called the Hidden Paw, for he is the master criminal who can defy the law. तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम भी आप चेक कर सकते हैं। paw and law, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एंड में सेम आता है, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम भी हम साथ साथ नोटिस करते जाएंगे। Macavity is a mystery cat. He is called the Hidden Paw. The poet says that Macavity is a mystery cat and he is known by the name of Hidden Paw. उसका नाम Hidden Paw के नाम से उसको जानते हैं Macavity को। For he is the master criminal who can defy the law. क्योंकि जो Macavity है वो मास्टर क्रिमिनल है, and he can defy means disobey the law. तो disobey होता है जब आप किसी कानून का पालन नहीं करते हैं, जब आप कानून को disobey करते हैं, that is the mystery cat Macavity does always. Okay, he is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. He is the bafflement. Bafflement means puzzle or confusion
और हिंदी में पहेली। तो वो स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पर लंदन पुलिस का जो पुलिस फोर्स है उसका हेडक्वार्टर है, स्कॉटलैंड यार्ड। एंड फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर मीन्स पेन है वो फ्लाइंग स्क्वाड के लिए। फ्लाइंग स्क्वाड है ए ब्रांच ऑफ द सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमांड विद इन लंदन्स मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस। ये लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस है उसकी एक ब्रांच है फ्लाइंग स्क्वाड। तो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड ये दोनों ही बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ही परेशान हैं। क्यों हैं? जो स्क्वाड्स का जो पर्पस है वो है रॉबरीज को इन्वेस्टिगेट करना। तो ये दोनों उस मैकेविटी की वजह से बहुत परेशान हैं, क्योंकि फॉर मीन्स बिकॉज व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वो अपराध के दृश्य पर पहुंचते हैं जहां क्राइम हुआ है, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी उन्हें वहां नहीं मिलता है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ही हैज़ मेड द पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड कंफ्यूज्ड बिकॉज व्हेन द पुलिस रीचेज द सीन ऑफ क्राइम आफ्टर ही कमिट्स क्राइम ही वेनिशेज अवे। तो उन्हें वहाँ पर मैकेविटी नहीं मिलता है और वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। इस वजह से स्कॉटलैंड यार्ड और आपका जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो दोनों बहुत परेशान हैं। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। द पोएट रिपीट्स द वर्ड मैकेविटी। इट सजेस्ट्स दैट पुलिस आर searching for him everywhere. According to the poem, there is no one like Macavity, as he has broken every human law. He breaks the law of gravity. तो पोएट ये कहता है कि there is no one like Macavity. Macavity जैसा दूसरा कोई नहीं है। As he has broken every human law, क्योंकि उसने इंसान के बनाए हुए हर कानून को तोड़ दिया है। As well as he breaks the law of gravity, उसने ग्रेविटी जो नेचर का लॉ है ग्रेविटी का वो भी तोड़ दिया है। कैसे? लॉ ऑफ ग्रेविटी here means that no one can vanish away but Macavity does. According to law, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो नीचे गिरती है ज़मीन पे, बट जो Macavity है वो हवा में ऐसे उछाल भरता है कि वो ज़मीन तक पहुंचता ही नहीं है। ही वेनिशेज अवे। तो वो इसका कहने का मतलब है कि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी मात दे दी है, उसे भी मतलब तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि एज पर ग्रेविटी नो वन कैन वेनिश अवे बट मैकेविटी डज। मैकेविटी गायब हो जाता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। मैकेविटी की जो पावर ऑफ लेविटेशन है, लेविटेशन मीन्स वेनिशिंग अवे और फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट। मैकेविटी में इतनी पावर है कि वो हवा में बिना सपोर्ट के मानो तैर रहा हो। दैट इज़ हिज पावर ऑफ लेविटेशन। तो उसे देखकर कोई फ़कीर मीन्स कोई रिलीजियस मैन कैन ऑल्सो बी सरप्राइज्ड। आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम ही वेनिशेज अवे एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर। So when anybody reaches the scene of the crime, he will not be able to find him, though he may search him on the ground. तो ज़मीन पर भी उसको ढूंढ लो, or in the air, above in the sky. So the poet tells again that he is not there. It is useless to search for him. You may seek him in the basement. You may look up in the air. So ये अभी हमने डिस्कस किया कि आप उसे ज़मीन पर ढूंढो और इन द एयर या हवा में ढूंढो। You won't be able to find him anywhere. But I tell you once and once again, Macavity is not there. So the poet tells us again and again that he is not there and it is useless to search for him. Next is Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. अब यहाँ poet हमें Macavity की description दे रहे हैं। The poet introduces him as a ginger cat as he is tall and thin. वो बहुत पतला और लंबा है, बिल्ला या आप कह सकते हैं, और उसको एक जिंजर कैट कहा गया है। जिंजर मीन्स थिन एंड टॉल। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. One will know that if he sees him. अगर मतलब कोई उसे देखे
तो उसे पहचान जाएगा कि वो मैकेविटी है। वाई? बिकॉज हिज आईज आर संकन इन, उसकी जो आंखें हैं अंदर को धसी हुई हैं। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज आईब्रोज आर डीपली लाइंड विथ थॉट मीन्स इट मेक्स हिम लुक लाइक अ विलन। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, उसका जो सिर है दैट इज राउंड इन शेप। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसका जो कोट है, जो उसके ऊपर फर है दैट इज डस्टी। एंड ही डज नॉट कीप हिमसेल्फ क्लीन, क्योंकि वो अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता है, तो उसके शरीर के ऊपर जो फर है, उसका जो कोट है दैट इज फुल ऑफ डस्ट। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स होता है अ हैवी ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द चीक, मतलब उसके गालों के ऊपर बहुत घने बाल हैं, वो कॉम्ड नहीं हैं, तो उसके विस्कर्स जो हैं दे आर अनकॉम्ड। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, अब उसके मूवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि ही कीप्स स्वेइंग, स्वेइंग मीन्स मूविंग हिज हेड फ्रॉम वन साइड टू द अदर एंड इट सीम्स लाइक द मूवमेंट ऑफ ए स्नेक, जैसे एक स्नेक अपनी मूवमेंट्स करता है, इधर से उधर सिर हिलाता रहता है, वैसे ही मैकेविटी द कैट भी कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। व्हेन समवन वुड थिंक दैट ही इज हाफ स्लीप, कोई अगर ये सोचे कि वो आधा नींद में है, इन रियलिटी ही इज अवेक एंड इन ए कंप्लीट सेंस, वास्तव में वो जागा हुआ होता है और पूरी तरह से अपने होश में होता है। फोर्थ पैराग्राफ इज मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, नो वन इज लाइक मैकेविटी एज ही इज ए फेंड, फेंड होता है डेविल और इविल स्पिरिट, इन फिलाइन शेप, फिलाइन मीन्स कैट्स शेप, कैट के वेश में उसके अंदर एक बुरी आत्मा है, मतलब वो एक डेविल है, एक दुष्ट आत्मा है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मीन्स मॉरली जो करप्ट हो, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, मीन्स ही इज ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, ही इज मॉरली करप्ट। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, वन कैन फाइंड एंड मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, बाय स्ट्रीट मीन्स जो रोड के साथ गलियों में आप उसे देख सकते हैं, और इन द स्क्वेयर, स्क्वेयर मीन्स मॉल, जहाँ पे बाजार होते हैं, इन द स्क्वेयर। बट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर, बट आफ्टर हिज क्राइम इज डिस्कवर्ड ही वैनिशेज अवे एंड कैन नॉट बी फाउंड। तो यहाँ पे जो मैकेविटी को एक ह्यूमन कैरेक्टर से मिलाया गया है, जिसमें जो एनिमल या नॉन लिविंग थिंग होते हैं उसको एक ह्यूमन कैरेक्टर दिया जाता है। इस पोएम में मैकेविटी को पर्सोनिफाई किया गया है एज ही डज ऑल द थिंग्स लाइक ह्यूमंस। तो यहाँ जो पोएम की जो पोइटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन, यानी एक जानवर को या एक एनिमल को इंसान के साथ मिलाना, उसके साथ कंपेयर करना, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। बच्चों, ये थी पोएम की एक्सप्लेनेशन। और अब हम कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज वर्किंग विद द पोएम। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 51। क्वेश्चन 1 इज रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक, इज मैकेविटी अ कैट रियली? क्या वास्तव में मैकेविटी एक कैट है? इफ नॉट, हु कैन मैकेविटी बी? तो आप लिखेंगे नो, मैकेविटी इज नॉट अ कैट रियली। पार्ट 2, मैकेविटी इज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर। फिक्शनल मीन्स जो कहानी में आपने कैरेक्टर को बनाया है, क्रिएटेड बाय द पोएट हुज एक्शंस रिजेंबल दोज ऑफ ए क्रुक्स। क्रुक्स होते ठग या चोर। सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु कैन डिफाई द लॉ। द स्कॉटलैंड यार्ड इज baffled because whenever they reach the scene of crime, they cannot find McCavity. Third, nobody can catch McCavity at the scene of crime because McCavity moves much faster than them. वो उनसे बहुत तेज भाग जाता है। Question 3, a cat, I am sure,
could walk on a cloud without coming through. Jules Verne. Which law is McCavity breaking in the light of the comment above? So you will write, in the light of the above comment, McCavity is breaking the law of gravity. Fourth, read stanza 3 and then describe McCavity in 2 or 3 sentences of your own. So you will write, McCavity is a ginger cat who is very tall and thin with sunken eyes and brow deeply lined with thought. While its head is highly domed, its coat is dusty and whiskers are uncombed. It sways its head from side to side and it is always wide awake even when one thinks he is half asleep. Question number 5. Say false or true for each of the following statements. McCavity is not an ordinary cat. True? Yes. McCavity cannot do what a fakir can easily do. It's false. McCavity has supernatural powers. McCavity's powers of levitation would make a fakir's stare in disbelief. So ये false है. Second वाला. Third is also true because McCavity has supernatural powers according to the poem. McCavity is well dressed, smart and bright. No, it's wrong because his coat is dusty and he does not keep himself clean and his whiskers are uncombed and he keeps swaying his head from one side to the other. So this proves that he was not well dressed, smart and bright. McCavity is a spy, a trickster and a criminal all rolled in one. So what will you write? True. Sixth question. Having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call McCavity a fiend and monster? So you will write, yes, it seems like the poet is fond of cats. He calls McCavity a fiend and a monster because he might have wanted to portray an evil side. He might have used a cat in order to create a negative character who is a criminal and escapes easily from the police. The quick movement of a cat and its mysterious eyes might have influenced him to create this evil character in the form of a cat. Question number 7 is, has the poet used exaggeration for special effects? Find a few examples of it and read those lines aloud. मतलब क्या पोइट ने इसको बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने पेश किया है पोएम को, उसको प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ जो लाइंस जो उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलती हैं वो आपको इसमें मेंशन करनी है. तो आप लिखेंगे, येस द पोएट हैज़ यूज्ड एग्जेगरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट्स सच एज the cat's defiance of gravity and its being called a monster of depravity and a fiend in order to enhance the mystery surrounding the cat. Since the cat is shown to be super fast, as nobody from the Scotland Yard to the Flying Squad can catch it on the scene of crime. These exaggerations have been used by Eliot to lay stress on this monstrous as well as surprising and mysterious nature of McCavity. So we will write examples. He is the bafflement of Scotland Yard, the Flying Squad's despair. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. He is a fiend in feline shape, a monster of depravity. So this is the complete exercise which we have discussed, and we have also discussed the poem. You can write the central idea of this poem also, which can come in your exam also. And this poem is complete now. I hope you must have understood it properly, and if you like my video, you don't forget to like, share and subscribe the channel English Guru. Keep yourself safe at your home and have a nice day. Bye bye बच्चों.